Welcome back, friends, and today in this video I'll talk about the political movement Negritude that happened in 1930s. So Negritude is considered to be a cultural and political movement जो कि 1930s में स्टार्ट हुआ था और Negritude का असल में मतलब है फ्रेंच में ब्लैकनेस। जो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन थे या अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन ये ब्लैक इंडिविजुअल्स इन द फ्रेंच स्पीकिंग वर्ल्ड। इस टाइम पे जो है फ्रेंच इन पे रूल करता था एंड दे यूज्ड टू सेलिब्रेट ब्लैक कल्चर आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। निग्रिट्यूड का ये मतलब है टू सेलिब्रेट योर ओन कल्चर आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। So it began in 1930s. Many of the writers and thinkers wanted to fight against colonialism and racism. I hope you people are aware of this term colonialism. Colonialism matlab when another country comes and rules over you, and racism is like when there's the discrimination between you and the other gender as well as the colorness of your skin. So negritude began in 1930s among black students from French colonies. अब French colonies कौन सी थी जैसे कि important writers for example Amy Caesar from Martinique or Leopold Sédar Senghor from Senegal या Leon Damas from French Guiana. So these writers and thinkers wanted to fight against colonialism. ये जो सारे writers और thinkers थे they really wanted to fight against colonialism, racism जो अभी मैं discuss कर चुकी हूँ and like ये सारे जो writers थे they wanted to reclaim pride and black identity. हमारे जितने भी कल्चर हैं जैसे कि लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ पश्तून्स या पख्तून्स तो दे डू रिक्लेम प्राइड इन देयर ओन कल्चर इन देयर ओन लैंग्वेज। इसी तरह पंजाबीज भी हैं। इस तरह डिफरेंट जगह के डिफरेंट लोग हैं वो अपने कल्चर और अपने ही आइडेंटिटी को प्रेफर करते हैं उसमें दे टेक प्राइड इन इट। So the movement spread to the Caribbean, African and other parts of the world. ये जो एक movement थी, political movement थी या cultural movement थी, ये बहुत सारे other countries के parts में फैल गई थी या different parts of the world में फैल गई थी जैसे कि Caribbean islands थे, Africans हैं, Africa है, South African people हैं, ठीक है? So it influenced literature, politics and social movement. Coming towards the other slide, like Negritude is a movement that promotes black pride and cultural identity, as I have already explained it, challenging the negative stereotypes imposed by colonialism. अब इस लाइन का मतलब ये है challenging the stereotypes कि लाइक जिस तरह ये अंग्रेज़ हम पे रूल करने आए थे इसी तरह फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो हैं जैसे कि फ्रेंच लोग थे वो अफ्रीका पे रूल करने आई थी और उन हमारे इस तरह की एक स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं नेगेटिव स्टीरियोटाइप जैसे कि अंग्रेज़ हम पे रूल करने आए थे सो लाइक आवर कल्चर लैग्स बिहाइंड और वी आर टू मच inferior than the Englishmen or English community or even when we talk about their language. उनकी लैंग्वेज ज़्यादा सुपीरियर है हमारी लैंग्वेज से सो देन दे क्रिएटेड बाइनरी ऑपोजिशन उनका हर चीज़ सुपीरियर है वेस्ट इज़ सुपीरियर एंड ईस्ट इज़ inferior. So negritude is a movement it was a movement that promoted black pride and cultural identity. So negritude का असल में मतलब है blackness in French. तो मैं इस पूरे स्लाइड्स को कंक्लूड इस तरह करूँगी कि एक निग्रिट्यूड एक मूवमेंट था दैट प्रोमोटेड ब्लैक प्राइड और कल्चरल आइडेंटिटी जो कि हमारे ऊपर इम्पोज किए गए थे या दुनिया में इम्पोज किए अभी भी इफ समबडी इज has a black color so he or she would have people would think of him or her as inferior. So imagine black college students in Paris in the 1930s. एक ब्लैक स्टूडेंट्स का कॉलेज था पेरिस में 1930s में और वो बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे एंड दे वांटेड टू लाइक they wanted to rebel against whatever the authorities were and like they were being told time and again back and forth that their culture is inferior. तो
दे स्टार्टेड टू फाइट बैक बाय सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग, लाइक उनने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया अपने स्टोरीज, जो जितनी भी कल्चरल स्टोरीज थी। जैसे कि हम छोटे होते हैं तो हमारे यहाँ पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हमें स्टोरीज करते हैं। द म्यूजिक वी डू, we do like music of our own culture, of our own language. For example, पश्तून्स अपना म्यूज़िक बहुत प्रेफर करते हैं अपने लैंग्वेज का। द आर्ट we have, every culture is having different arts, and the way of life, the way we spend our life in a particular way by following our customs and rituals। तो हमारे हर पूरी पूरी लिटरेचर, पूरे लैंग्वेजेस, पूरे कल्चर, इन लोगों ने अपने कल्चर को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, हर एक इवेंट को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। जैसे कि हम लोग ईद को सेलिब्रेट करते हैं। सो दे कॉल्ड दिस मूवमेंट निग्रिट्यूड, और फिर ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब है टू बी प्राउड इन अ पावरफुल वे। लाइक जैसे कि एक एग्जांपल है, जस्ट लाइक हाउ अ लॉयन वुडंट बी अशेम्ड ऑफ इट्स रोर। तो जिस तरह वो दहाड़ता है लॉइन, वो कभी भी अपनी आवाज़ से शर्मिंदा नहीं होगा। सो सिमिलरली निग्रिट्यूड इज़ अबाउट ब्लैक पीपल बीइंग प्राउड ऑफ हु दे आर एंड where they have come from। So like it, this movement showed the world that the beauty of black culture and history, and standing up to everyone who says it's not important। Like people do put them back or put them down कि नहीं तुम काले हो, तुम ये हो, तुम वो हो, you are inferior, you are not capable of doing anything। सो लाइक निग्रिट्यूड जो है, फिर बहुत सारे पोइट्स और राइटर्स ने पोएम्स लिखना शुरू कर दी, पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी। और इवन हमारे पास बहुत सारे अफ्रीकन राइटर्स हैं, जैसे कि चिनवा अचेबी है, उसने नॉवेल्स लिखे हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट एंड मैनी ऑफ द अदर नॉवेल्स एज वेल, जिसमें बिल्कुल ब्लैक कल्चर बताया गया है, ब्लैक अफ्रीकन कल्चर, नाइजीरिया का इग्बू सोसाइटी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, the way they celebrate their culture around the world। So this was all about my video. Thank you so much for watching. Meet you guys in the next video.